चलो भाई ऐसा चलो कोई आपको मशवरा दिए तो करो। अरे बात करने आए वो लोग अपने लोग नहीं हकालना से याद रखो। हाँ सबर करो बोलता है कहीं। अरे क्या सबर अरे खुरान जिला वाले कौन है? खुरान जिला भाई चलो तुम्हारी बस्ती में जाओ। चाचा कहाँ के आप कहाँ के? चलो निकलो, तुम्हारी गली में जाओ, निकलो यहाँ नहीं निकला। चलो शरीफ भाई बस खामोश था। कुरान की राह पर यहाँ पे रिकॉर्ड है। हरी भाई मेरी बात को रिकॉर्ड क्या क्यों करा? रिकॉर्ड क्या क्यों करा? पुलिस वाला फोन करो जी। पुलिस वाला फोन करो। अरे सर जल्दी करो बोलो। फिर भी करो एक बार।
पहले देखो रहने दो, आराम, सुकून सुकून, सबर करो। ये आपस ही में السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کونسل کا نیشنل اسپوک پرسن الحمدللہ میں اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کو اس فیس بک لائیو کے ذریعے سے ایک انسیڈنٹ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اور وہ انسیڈنٹ یسٹرڈے 16 فروری 2025 کو پیش آیا تھا امبیدکر نگر اولڈ الوال سکندرآباد حیدرآباد میں امبیدکر نگر اولڈ الوال سکندرآباد حیدرآباد میں کل صبح 10 بجے سے 4 بجے عصر تک اہل حدیث ساجد بھائی کے مکان میں ایک اجتماع رکھا گیا تھا اور اس اجتماع میں خواتین کی تعداد 200 یا اس سے تھوڑی کم یا تھوڑی زیادہ تھی اور مرد حضرات اہل حدیث مرد حضرات کم سے کم 20 تھے ہوں گے 4 علماء مدعو تھے اس اجتماع میں اور 3 معلمات مدعو تھے اور یہ 7 لوگوں کو 20 منٹ یا 25 منٹ اپنی اپنی ٹاپک پر کچھ بولنا تھا استقبال رمضان مرکزی عنوان تھا یسٹرڈے کے اجتماع کا اور کسی وجہ سے ٹینٹ ہاؤس وغیرہ کے مسئلے مسائل دیکھتے دیکھتے تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا تو ایک قرات ہوئی قرات قرآن مجید سے اجتماع کا آغاز ہوا اور شیخ فیصل راشد جامعی حفظہ اللہ 10 سے 12 منٹ کچھ بولے ہوں گے تزکیہ نفس ان کا عنوان تھا 12:35 کے بعد ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب جو الوال کے تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت کے ذمہ داروں میں سے ہیں وہ کچھ تبلیغی دیوبندی بھائیوں کو لے کر آنے کے بعد انہوں نے اجتماع روکنے کی بات کی ہے ویڈیو آپ دیکھے ہیں وہ ویڈیو وائرل ہوا کس نے ویڈیو لی اللہ عالم کیونکہ آرگنائزر تو گھر کے اندر تھے علماء تو گھر کے اندر تھے معلمات تو گھر کے اندر تھے اور چونکہ میں وہاں پر مہمان کی حیثیت سے گیا تھا اور جب دیکھا کہ باہر آواز آ رہی ہے اور آواز کچھ زیادہ ہی آ رہی تھی کہ بند کرو یہ سب کیا کر رہے اور یہاں سے جاؤ وغیرہ تو میں روم سے باہر نکلا وہ عالم دین اپنا بیان جاری رکھے تھے اتنے میں ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب وائر کھینچ دیے اسپیکر کا اور عورتیں جو باہر ساجد بھائی کے گھر کے گیٹ کے باہر جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کچھ کرسیوں پر نان مسلم پڑوسی کے گھر شادی تھی 2 دن بعد تو انہوں نے پہلے سے ٹینٹ ڈال کے رکھے تھے وہاں پر اور ان سے اجازت لے کے ساجد بھائی نے جو ہے کرسیاں لگا دی تھی تو جو خواتین ساجد بھائی کے گھر کے اندر روم میں ہال میں اور ٹیریس پر تھی اور جو خواتین وہ گھر بھرنے کی وجہ سے باہر ٹینٹ میں کرسیوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان سب سے جو کچھ بھی بد اخلاقی کہیے انہوں نے کیے ایوب خان صاحب یا ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے تو وہ سب ویڈیو میں موجود ہے وہ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا
کہ الوال کے علاقے میں 8 تبلیغی جماعت کی مسجدیں ہیں، وہاں پر تبلیغی دیوبندیوں کی ہی دعوت و تبلیغ ہونا، اہل حدیث کی دعوت و تبلیغ نہیں ہونا۔ ساجد صاحب پچھلے 2 سال سے ان کے گھر میں اسلامک ٹیوشنز چلا رہے ہیں، اسلامک کلاسز چلا رہے ہیں، خواتین کو، بچوں کو قرآن کے سورے یاد کرا رہے ہیں اور دعائیں یاد کرا رہے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سکھا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی بنیادی عقیدے کی باتیں وہ سکھا رہے ہیں قرآن سے اور صحیح احادیث سے۔ ساجد بھائی کے اہلیہ عالمہ ہیں، اور 2 اور معلمات کو باہر سے بلاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی اور معلمہ کو باہر سے بلاتے ہیں، اور وہ وہاں پر سیٹرڈے سنڈے کا اسلامک ٹیوشن چلاتے ہیں۔ تو کل اجتماع تھا، اور اس اجتماع کا پوسٹر بھی وائرل ہو چکا تھا۔ وہ پوسٹر دیکھ کر ایوب خان صاحب اور ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے وہ یہ بولے 15 فروری کو ساجد بھائی کو کال پر کہ آپ یہ سب نہیں کرنا، یہاں پر آپ پہلے آ کے ہم سے مشورہ کرو، ہماری بستی میں یہاں پر آپ اہل حدیث کا کیا ہے وغیرہ۔ ایک کال ریکارڈنگ ہے 9 منٹس کی، اس میں جو کچھ بھی بولا گیا تھا، بہرحال کال ریکارڈنگ میرے پاس بھیجے ساجد بھائی، میں 15 فروری کی رات سن لیا، اور 16 فروری کو میں نے کہا آپ وہاں پر اجتماع کریے، آپ جو ہے آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، ٹو پریکٹس، ٹو پریچ، ٹو پروپیگیٹ، ہم کو آزادی ہے، اور آپ امن سلامتی سکھا رہے ہیں لوگوں کو، امن کو خطرہ نہیں ہے آپ کی تعلیمات سے، آپ پروگرام کریے، آپ مجھے بھی بلا رہے ہیں، میں بھی آؤں گا، علماء آ رہے ہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں وہاں گیا تھا۔ بہرحال تو آرٹیکل 25 کی مخالفت کرے ایوب خان صاحب اور ان کے ساتھی، ویڈیو میں دیکھ رہے 6 منٹ 43 سیکنڈ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے، وہ ویڈیو مجھے انڈیا میں کہاں سے لوگوں نے بھیجے، اور جدہ وغیرہ سے میرے پاس آیا کہ شیخ صاحب اس ویڈیو میں آپ بھی ہیں، لوگ آپ کو دھکیل رہے ہیں اور دوسرے اہل حدیث ساتھیوں کو دھکیل رہے ہیں اور جاؤ یہاں سے بول رہے ہیں۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ اب ہر ایک کو 10 منٹ کا جواب دینا پڑ رہا ہے، 20 منٹ کا جواب دینا پڑ رہا ہے، علماء بھی کال کرے پوچھے کہ آخر کیا ہوا، کہاں کا یہ واقعہ ہے، کیا ہوا تھا، کون لوگ ہیں جو اجتماع میں جو ہے اس طریقے سے شر کرنے آئے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے دھکا دے رہے تھے، جاؤ بول رہے تھے، یہ کون ہے، تفصیلات لوگ پوچھ رہے، تو ہر ایک کو جو ہے کال پر جواب دینا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ فیس بک لائیو کے ذریعے سے میں لوگوں کو خلاصہ بتانا چاہ رہا تھا یسٹرڈے کی انسیڈنٹ کا۔ تو میں مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے 6 منٹ 43 سیکنڈ کا اپنے فیس بک ٹائم لائن پر وہ پوسٹ کر دیا تھا ویڈیو، اور یہ لکھا تھا کہ مغرب بعد فیس بک لائیو آؤں گا، لیکن سبحان اللہ کچھ لوگ آ کر ملنے کے لیے آ گئے، اور کچھ اور کالز وغیرہ، ذمہ داریاں بہت ساری تھی، اس وجہ سے لیٹ آیا ہوں فیس بک لائیو۔ کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ایوب خان صاحب اور ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے، ان لوگوں کو غلط فہمیاں جو اہل حدیث کے بارے میں سنائی گئی، سن کر اہل حدیثوں کے بارے میں جو ان کے سینے میں غلط باتیں تھی، وہ غلط فہمی کے وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ بہرحال وہاں پر آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، میں فون ہاتھ میں لیا ہوا ہوں، فون پر بات کر رہا ہوں، تو میں الوال پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو کال کیا فوراً، اور وہاں پر ان کو انفارم کیا کہ میں ایز اے گیسٹ یہاں پر بلایا گیا ہوں، اور یہاں پر اسکالرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہاں پر لڑکیوں کو، عورتوں کو جو پارٹیسپیٹ کیے تھے یہ اجتماع میں، اور اس سے پہلے جو اسلامک کلاسز چل رہی تھی، ان لوگوں کو سرٹیفکیٹس دینا ہے، گفٹس دینا ہے، اور کھانے کا بھی انتظام ہے۔ یہاں پر جو ہے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آ کے فتنہ فساد کر رہے ہیں، اور یہ روکنے کو بولے، اور پورا پروگرام خراب کر دیے۔ مطلب بہت کچھ اس ویڈیو میں ہم بتا سکتے ہیں۔ پولیس کو ہم نے کہا تو پولیس نے وہاں پر فوراً انووا بھیج دیے، پولیس والے آ گئے۔ پھر خواتین جو تھی، جو معلمات باجی لوگ آئے تھے، وہ لوگ سب پولیس اسٹیشن گئے، ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے، تبلیغ جماعت کے بھائی لوگ پولیس اسٹیشن گئے، جا کر بیٹھے۔ میں نام اگر صحیح بول رہا ہوں تو شنکر گوڑ صاحب نام ہے وہ SI صاحب کا، ان کے سامنے بیٹھے۔ ایوب خان صاحب وہاں پر بھی نیگیٹو باتیں بولتے رہے، لیکن ایک سلجھے ہوئے تبلیغی دیوبندی بھائی جہانگیر بھائی کچھ اچھی بات کرے، اور پھر میں وہاں پر ان لوگوں کی بات سننے کے بعد شنکر گوڑ SI صاحب کو جو ہے میں نے جو کچھ بولنا تھا بولا کہ دیکھیے سر، ایوب خان صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ فضائل اعمال کا درس دے رہے ہیں پہلے جمعرات کو، پھر مجیب صاحب کے گھر پہ ایوب صاحب کے گھر کی خواتین یا اور کوئی خاتون جا کے فضائل اعمال کا درس دوسرے جمعرات کو دے رہے ہیں، چوتھے جمعرات کو نذیر خان صاحب کے گھر میں وہیں پر اولڈ الوال یا الوال وغیرہ میں چوتھے جمعرات کو فضائل اعمال کا درس دے رہے، تو ان کی خواتین جا کر وہاں پر درس دے سکتے ہیں، تبلیغی دیوبندی خواتین۔ تو اہل حدیث ساجد بھائی کے گھر میں اہل حدیث ساجد بھائی کی اہل حدیث اہلیہ جو عالمہ ہیں، اور دوسرے علاقے سے اہل حدیث معلمات عورتیں آ کر عورتوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پیاری پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں، اسلام کی امن سلامتی سکھا رہے، تو کیوں نہیں سکھا سکتے یہ؟
राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू इक्वालिटी देता है, तो जब उनको इख्तियार है तो इनको भी इख्तियार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 है, तो इसकी मुखालिफत करें अय्यूब साहब और उनके साथी लोग। और मैंने कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो मेरी और हमारे साजिद भाई और तमाम साथियों की जो है ये थ्रेट है लाइफ को। लोग आके इस तरीके से पहले एक दिन पहले कॉल करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे वगैरह वगैरह, कॉल रिकॉर्डिंग में अल्फाज है। फिर आकर जो है इस तरीके से जो कुछ भी किए वीडियो में आप देख रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो आर्टिकल 21 की भी मुखालिफत किए लोग। तो लिहाजा जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन और BNS, BNSS, IPC, CRPC जो है आप सब जानते हैं, उसके मुताबिक आपको क्या करना है आप करिए। शंकर गौड़ साहब ने कहा कि ठीक है हम आपकी सुन लिए, थोड़ा बाहर जाइए और जो है पहले हम इनसे और कुछ बात करते हैं, उसके बाद फिर आपको बुलाते हैं। फिर हमको बाद में बुलाए 10 मिनट बाद, फिर हम बैठे, फिर जो कुछ भी बात हुई, शंकर गौड़ साहब SI साहब जो है सब इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मेजॉरिटी इनकी है वगैरह जो भी है। मैंने कहा देखिए मेजॉरिटी है जो भी है, लेकिन इंडिया में सबको इख्तियार है अपने अपने रिलीजन पर अमल करने की और अपने रिलीजन के प्रोपिगेशन की। लिहाजा जो है साजिद साहब जो इस्लामिक ट्यूशन चला रहे हैं उनके घर में, इस्लामिक क्लासेस चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। रही बात इज्तिमा की, इज्तिमा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन लोगों को इज्तिमा करने से तकलीफ हो रही है, इनके घर की खवातीन, देवबंदी तबलीगी खवातीन अगर अहले हदीस साजिद भाई के घर में आके सही अकीदा सीख रहे हैं कुरान और हदीस से, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख रहे हैं कुरान और हदीस के दलाइल से अल्हम्दुलिल्लाह, सही हदीस के दलाइल से अल्हम्दुलिल्लाह, और अखलाक हसना सीख रहे ये मुअल्लिमात से, जो मुअल्लिमात कोई टोली चौकी से आ रहे, कोई मासब टैंक से आ रहे, कोई जो है अंबरनगर से गए हैं वगैरह, तो जो आ रहे हैं शहर हैदराबाद के कहीं से भी कोई मुअल्लिमात और सिखा रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं कर रहे। लिहाजा जो है आप ये नहीं रोक सकते। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं साहब कि ठीक है इज्तिमा अगर आप रोक रहे हैं कि जो है आप बोल रहे हैं कि बहुत इनको ऑब्जेक्शन है इज्तिमा से, इज्तिमा मत करो, तो मेरा कहना है कि इज्तिमा भी कर सकते, जैसा उनको इज्तिमा करने का इख्तियार है, अहले हदीस को भी इज्तिमा करने का इख्तियार है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि उनकी बात से कि पुलिस परमिशन नहीं लिया, तो कहना यह है कि ग्राउंड में करने के लिए पुलिस परमिशन चाहिए, फंक्शन हॉल में करने के लिए पुलिस परमिशन चाहिए, या मेन रोड पर स्टेज डालकर अगर प्रोग्राम कर रहे ऐसा इज्तिमा वगैरह, पब्लिक मीटिंग जिसे कहेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए पुलिस परमिशन चाहिए। जो बंदा अपने घर में, अपने रूम्स में, हॉल्स में, टेरेस पे और अपने दरवाजे के बाहर जो है चेयर्स डाल के बिठा दिए, तो इसमें पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बात मैं सब इंस्पेक्टर शंकर साहब से बोला, और जो मुखालिफत कर रहे थे अयूब खान साहब के साथी लोग, बहरहाल उनको जो है थोड़ा समझा रहे थे हमारे जहांगीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए भाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोले। और उन जहांगीर भाई ने कहा पुलिस के सामने कि कोई दावत व तबलीग से इख्तिलाफ नहीं है हमको साजिद भाई की, ये अल्फाज जहांगीर भाई के थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मशवरों से करना चाहिए था। यहाँ पर 8 मस्जिदों के जिम्मेदार हैं हम वगैरह वगैरह। तो कहना यह है कि तबलीगी लोग अपने अपने बड़ों की जिम्मेदारी जो है वो देखेंगे, उनसे मशवरे करेंगे। अब अहले हदीस है तो उनके बड़ों के मशवरे लेकर, उनके जिम्मेदारों के मशवरे लेकर जो है काम करेंगे। और ताइफा मंसूरा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नाम से एक सोसाइटी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 2001 के मुताबिक उन्होंने सोसाइटी रजिस्टर कर लिए, तो वो उसकी जेरोक्स कॉपी भी मैं शंकर साहब के हाथ में दिया, सर्टिफिकेट का और बायलॉस का। देखे उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 वगैरह वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शंकर साहब समझ गए। उसके बाद शंकर साहब ने कहा कि जहांगीर भाई और फसीउद्दीन गारू आप जो है बात करिए, और आप लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं 8 रकात 20 रकात या और जो कुछ भी औरतों को मस्जिद में लाने के बारे में, ऐसे बहुत सारे सवालात वहाँ थे, हनफियत और अहले हदीस के इख्तिलाफी मसाइल बोल रहे थे। तो शंकर साहब ने कहा आप लोग बाहर बैठ के, पुलिस स्टेशन के बाहर मस्जिद में बैठ के इस मसले का हल करिए, और अगर आप लोग मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर हम लोग वहां से उठे। खवातीन जो उस पुलिस ऑफिसर के रूम के बाहर जो ठहरी हुई थी, उनसे जाके शंकर साहब मुलाकात किए। खवातीन में से जो बाजी लोग आए थे मुअल्लिमात, उन्होंने बात किए, बोले कि आज हमारा ये इज्तिमा खराब कर दिया, हमको सर्टिफिकेट्स देना था, खाना खिलाना था लोगों को, और फिर सब कुछ गिफ्ट देना था जो था। तो उस वक्त मैंने नजीर खान साहब और जहांगीर भाई की मौजूदगी में साजिद भाई के सामने, शंकर साहब के सामने खवातीन को बोला आप तमाम लोग यहाँ से साजिद भाई के घर जाइए, सब लोगों को खाना खिलाइए, और क्लोज डोर में आप लोग अपना सर्टिफिकेट तकसीम कर लीजिए, और आप अपने गिफ्ट दे लीजिए, और इस्लामिक ट्यूशंस आप आपके सैटरडे संडेज चलाते रहेंगे, जैसा
तबलीगी देवबंदी भाइयों के घर में जुमेरात जो है अलग अलग भाई के घर में उनका फजाइल अमाल का जो इज्तिमा उनका चल रहा है, यहाँ पर कुरान और सही हदीस का इज्तिमा नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस का इस्लामिक ट्यूशन, इस्लामिक क्लासेस चलाते रहिए। मैंने ऐसा कहा तो शंकर साहब उसको ओके करे, नज़ीर खान साहब ओके करे, जहांगीर भाई ओके किए, फिर वो खवातीन वहाँ चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो बोला गया था वो लोग कर लिए। जहांगीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम किए कि मुझे बोले कि देखिए 3:30 हो रहे, हम लोग जोहर भी नहीं हुई, यहीं पर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने, अलवाल पुलिस स्टेशन के सामने उनकी मस्जिद कुबा थी, वहाँ मस्जिद कुबा में लेकर गए और फिर हम सब वजू करे और मेरी इमामत में देवबंदी भाई लोग और अहले हदीस भाई लोग नमाज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 4:45 बजे नमाज खत्म होने के बाद 4:45 से 4:45 1 घंटा देवबंदी भाई लोग और देवबंदी कुछ उलमा और एक मुफ्ती साहब भी थे बैठे हुए, उन लोगों ने सवालात किए मुझसे और इज्मा और क़ियास अहले हदीस नहीं मानते। एक देवबंदी आलिम ने कहा तो मैंने उनको दलील सुनाया कि देखिए हम मानते हैं, दलील इज्मा की कुरान से मैंने दिया, सूरह निसा आयत नंबर 115 पढ़ के सुनाया और फिर मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस 399 इज्मा की दलील है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बताया मैंने उनको, हम इज्मा को मानते हैं। फिर इज्तिहाद क़ियास शरई जो नुसूस शरइया से नहीं टकराने वाला इज्तिहाद है उसको हम मानते हैं, वो इज्तिहाद को, तो उसकी दलील किताबुल अहकाम सही बुखारी से मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो माने। उसके बाद फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु को आप लोग नहीं मानते, बुग़्ज़ रखते, ऐसा सवाल आया तो मैंने वो गलत फहमी का जो है जवाब दिया। फिर एक भाई ने कहा कि आप जो है सहाबा को नहीं मानते अहले हदीस लोग, तो मैंने कहा ये झूठी बात फैलाई गई है, ये गलत फहमी को आप जो है दूर करिए। मैं जवाब देता हूं, देखिए इस मस्जिद में हम बैठे हैं, एग्जाम्पल देता हूं कि ये एक घर है, इस घर में हम लोग बैठे हैं और इस घर का नाम इस्लाम है, तो इस्लाम घर के दरवाजे का नाम सहाबा है। इस्लाम घर में दाखिल होना है तो सहाबा दरवाजे से ही दाखिल हो सकते हैं, वो जो दरवाजा है वो सहाबा है, सहाबा के बगैर इस्लाम में नहीं दाखिल हो सकते। मैंने समझाया तो सब लोग सुभान अल्लाह बोले, हमारे जहांगीर साहब बोसा दिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी और अच्छी बातें वहां पर हुई। और फिर जो है जो लोग बदअखलाकी किए थे, गाली गलौज जो कुछ भी कर लिए थे, नाम नहीं लूंगा, वो भाई आए मेरे पास बड़े अदब के साथ, वो लोग जो है मेरे से माफ़ी मांगे, मेरे से गले मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है 4:45 बजे असर की अजान हुई और फिर 5 बजे असर की इमामत मुझसे करवाए जहांगीर साहब और मुफ्ती साहब देवबंदी और जो साथी वहां थे। तो मेरा कहना है कि वीडियो जो 6 मिनट 43 सेकंड का या और छोटे छोटे वीडियोस जो बाहर आवाम ने लेकर उसको वायरल कर दिए थे, वो वीडियो में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम है ना। तो उसका खुलासा ये है कि अहले हदीस का इज्तिमा था, देवबंदी रोकने आए थे, लेकिन फिर ये तफसील वहां पर ऐसी हुई और पुलिस स्टेशन में जो कुछ बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश से या तेलुगु से या उर्दू से या अरबी में आयत पढ़ के अरबी में हदीस पढ़ के जो कुछ मैं पुलिस स्टेशन में समझा सकता था समझाया, फिर वहां पर से मस्जिद में समझाया, सब समझ में आया उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पर जो है लोगों ने, वो देवबंदी तबलीगी भाइयों ने मेरा मोबाइल नंबर उनके फ़ोन में सेव किए, अपने अपने नंबर कुछ का नंबर मैंने अपने फ़ोन में उनके सेव किया। फिर उन लोगों ने कहा कि हम आपको खुतबे जुमा के लिए बुलाएंगे, हम आपको दर्स के लिए बुलाएंगे यहाँ पर हमारी मस्जिद में। और एक अच्छी बात जहांगीर भाई की, उन्होंने वो 4:45 से 4:45 जो 1 घंटा बात हुई तो स्टार्टिंग में ही अपना हाथ उठाकर बोले तमाम देवबंदी तबलीगियों को और तमाम अहले हदीस जो वहां थे उनको कि देखिए मैं यहाँ पर बगैर जमाअत के बैनर से मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, कुरान और हदीस की बात होना है, शेख साहब कुरान हदीस की बात बोल रहे, सुनिए, इस तरीके से वो बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात उन्होंने रखे और जो मुझसे सवालात किए गए और मैंने कहा देखिए सवालात कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूंगा, इसका रिकॉर्ड कर लो आप लोग, ताकि जो है फिर बाद में ऐसा ना हो कि फसीउद्दीन हैदराबादी से हम ये पूछे थे, उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा बोले, लिहाजा ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप लोग रिकॉर्ड कर लो। उन लोगों ने, देवबंदी तबलीगी भाइयों ने रिकॉर्ड कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने इज्जत दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो अय्यूब खान साहब जोहर पड़े मेरे पीछे 3:30 बजे और फिर वो चले गए, उनको कुछ काम था तो वो चले गए, असर में वो नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूं कि हमारे आरिफ भाई, हमारे गौस भाई जो देवबंदी तबलीगी, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें बताए फिर बाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, शफी भाई और साजिद भाई के सगे बड़े भाई, इन सब से जो मेरी बात हुई, देखिए एक बात कहना चाहता हूं, साजिद भाई के करीबी रिश्तेदार को साजिद भाई से कुछ अगर प्रॉब्लम है पर्सनल इश्यूज में, तो मैंने उस दिन वहां पर ये बोल दिया यस्टरडे कि जो है हम एक दिन टाइम निकाल के आते हैं और इनका कुछ मसला है रिश्तेदारों के साथ, जो कुछ भी हम समझते हैं, वो तौहीद सुन्नत सिखा रहे, वो अखलाक हसना सिखा रहे, लेकिन और कुछ मसाइल है तो ठीक है मैं बैठ के जो है सामने बात करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग राजी हुए, उन्होंने कहा कि आप लाजिम आना है और फैसल बन के फैसला करिए इस मसले में। और साजिद भाई के बारे में मैं कह दूं कि साजिद भाई का जो कुछ भी मसला होगा आप लोगों के साथ, दीन
साजिद भाई का जाती दीन नहीं है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों तमाम रसूलों का दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम मुकम्मल किया अल्लाह ने हमारे आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन इस्लाम मुकम्मल किया। तो दीन इस्लाम सिखाने आए थे कल वहां पर उलमा और मुअल्लिमात, और मैं वहां पर मेहमान था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर साजिद भाई के वजह से आकर दीन के काम को रोकने की कोशिश की, ये चीज ठीक नहीं थी। आप लोगों ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 की तो मुखालिफत की, आर्टिकल 21 की मुखालिफत की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, लेकिन सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 की भी मुखालिफत हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 की भी मुखालिफत हुई उन भाइयों से, तबलीगी देवबंदी भाइयों से, और सही मुस्लिम हदीस नंबर 4950 की भी मुखालिफत हुई अयूब खान साहब से और दूसरे भाइयों से। अल्लाह इन सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, आमीन। और ये लोग मुझे बुलाते रहेंगे बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मैं वहां जाकर उनके और मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो सुनकर उनको कुरान की दलीलों से, सही हदीस की दलीलों से समझा सकूं, सलफ सालिहीन के फहम से समझा सकूं, ताकि वो लोगों को भी समझ में आए कि अहले हदीस अहलुल हक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब ये वीडियोस जब मुझे आ रहे थे बहुत सारे और लोग जवाब मांग रहे थे आखिर क्या है, तो मैं फेसबुक लाइव से पहले भी जहांगीर भाई को कॉल किया और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा मुझसे लोग सवालात कर रहे हैं वीडियो वायरल होने की वजह से, मुझे जवाब देना है। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूं फेसबुक लाइव और मुझे आपको पहले से इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वहां पर जब सुलह हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो है वहां पर जो है हम एक अच्छे माहौल में गले मिलकर निकले अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मस्जिद से। आप लोग तो कुछ लोग बैठे भी रह गए, मुझे और बिठाना चाहते थे लेकिन मुझे टाइम नहीं था, मैं जाना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर सब अच्छे माहौल में पीसफुल एनवायरनमेंट में बात होने के बाद हम पीसफुली चले गए। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, फिर आपके पास कुछ और XYZ बातें इधर उधर से ना आए, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं। तो जहांगीर साहब ने कहा ठीक है आप वीडियो में बोलिए, जो हुआ वो सब इंशाल्लाह आप बताइए, और जो कुछ भी पर्सनल इशू है रिश्तेदारों से साजिद भाई के, मैं इंशाल्लाह जाके उस मसले में बैठ के इंशाल्लाह बात कर लेता हूं। साजिद भाई से दुश्मनी ना करिए, अहले हदीसों से दुश्मनी ना करिए, और इंशाल्लाह वहां पर आके हम साजिद भाई के मसाइल जो कुछ भी रिश्तेदारों से वो भी दिल साफ करा देंगे, कुरान हदीस का जो फैसला है वो समझा देंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। मैं कल भी बोला हूं कि मैं एक तिफले मकतब हूं, लोग मुझे मुफ्ती साहब बोल रहे थे, मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट ऑफ कुरान एंड हदीस हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो कुछ सलफ सालिहीन के फहम से अपना अकीदा, सलफ सालिहीन के फहम से अपने अमाल बनाए हूं, जो कुरान और सही हदीस के दलाइल के मुताबिक है सलफ का फहम, वही मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों ने कहा, और आज जहांगीर भाई ने कहा कि 2025 के रमजान की पहली या तीसरी ताख़रात को हम आपको बुलाएंगे दर्स के लिए वगैरह, उन्होंने कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो है वो वीडियो में देख रहे हैं आप लोग कि जो है लोग हमारे हाथ पकड़ के हमको ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये इज्तिमा बंद करो वगैरह। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो ये तफसील थी, लिहाजा आप लोग समझ लीजिए कि जो है अधूरे वीडियो से लोग कुछ भी झूठ नहीं फैलाना, जो सच्चाई है ये वीडियो भी वो तबलीग देवबंदी भाई जो मस्जिद क़ुबा के हमारे जहांगीर भाई हो, अयूब खान साहब हो, वो सब लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, और वो भी इंशाल्लाह अगर आप लोग और तहक़ीक़ात करना चाहते हैं तो ये वीडियो के बाद अलवाल पुलिस स्टेशन के सामने मस्जिद क़ुबा में जाके उनसे मिल के भी इंशाल्लाह आप लोग तहक़ीक़ात कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये बात फाइनल हुई उस मीटिंग में, पुलिस स्टेशन के अल्फाज हमारे नज़ीर खान साहब दोहराए कि एवरी सैटरडे संडे जो कुछ भी इस्लामिक ट्यूशंस, इस्लामिक क्लासेस अहले हदीस साजिद भाई के घर में अंबेडकर नगर ओल्ड अलवाल में होती है वो होती रहेगी, बस इज्तिमा करना है, पब्लिक मीटिंग करना है तो पुलिस परमिशन लेना पड़ेगा, ये बात हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामिक ट्यूशंस, इस्लामिक क्लासेस साजिद भाई के घर के चलते रहेंगे और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा उस इस्लामिक ट्यूशंस, इस्लामिक क्लासेस से, जहां पर सही अकीदा, सही आमाल कुरान और सही हदीस के दलाइल से सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुसलमानों को कुरान और सही अहादीस पढ़ने की तौफीक दे, कुरान और सही अहादीस को सलफ सालिहीन के मुताबिक समझकर अमल करने की तौफीक दे हमारी मौत तक। और पहले नंबर पे अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला अल्लाह हमें बना दे, दूसरे नंबर पे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला अल्लाह हमें बना दे, तीसरे नंबर पे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम से सच्ची मोहब्बत करने वाला अल्लाह हमें बना दे, आमीन। और चौथे नंबर पे माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनका अदब एहतराम करने वाला बना दे अल्लाह हमें। और फिर बाकी फिर दूसरे लोगों से मोहब्बत, अदब, एहतराम के साथ कुरान और सही अहादीस की तालीमात हम नॉन मुस्लिम्स को भी समझाएं, मुस्लिम्स को भी समझाएं, और नॉन मुस्लिम्स के भी मिसकॉन्सेप्शंस दूर करें कि देखिए इस्लाम सिर्फ अमन सिखाता है, इस्लाम
तमाम सलामती सिखाता है। हम नॉन मुस्लिम्स को भी हम जो है अपनी इफ्तार की दावत में बुलाते हैं, अपने और निकाह वलीमा की दावत में बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि देखो हम लोग प्यार मोहब्बत तकसीम करने वाले हैं। तो हम मुसलमानों में जो फ़िरक़े हैं उनमें भी हम जो है प्यार मोहब्बत से, अदब एहतराम से कुरान और सहीह हदीस की तालीमात आम करते रहेंगे हमारी मौत तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कानूनी दायरे में रहकर इंडिया में हमको इस्लाम सीखते हुए, इस्लाम पर अमल करते हुए इस्लाम सिखाने वाला बनाए रखे, तक़वा इखलास के साथ हमारी मौत तक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।